Hello students, in the last lecture I have started the new chapter that is the life processes, okay, and in that lecture we have discussed about what actually is the life process or what actually are the life processes. So basically it involves those processes which are essential to maintain the life of a living organism on the earth. And these life processes are mainly of four types: nutrition, respiration, transportation and excretion, right? So today I am going to start with the first life process, that is nutrition. Okay, what is nutrition? आप क्या समझते हो न्यूट्रिशन से? आप क्या समझते हो? न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ प्रोसेस, okay, by which any organism takes up the nutrients from the atmosphere. Now what are those nutrients? Those nutrients may be carbohydrate, protein, vitamin, fats, minerals, water, okay. So these all are the nutrients. तो क्या होगा? Organism they take up the nutrients from the atmosphere and then they utilize all the nutrients to perform their various metabolic activities, right? तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस सिर्फ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है. न्यूट्रिशन का प्रोसेस सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को लेना, सिर्फ किसी चीज को खाना नहीं है, है ना. बॉडी में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेना नहीं है, उसको लेने के बाद उसका यूटिलाइजेशन करना है. कैसे उसका यूटिलाइजेशन बॉडी करेगा? टू गेट एनर्जी एज वेल एज टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी. हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से मिलेगा. और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो सो दिस इज द प्रोसेस. न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म विल टेक और अपटेक द न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट फॉर द body functions, to perform the various body functions. So let's write down the definition of nutrition. What is basically nutrition? ठीक है, तो nutrition it is a process of uptake of nutrients, process of uptake of न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्लीज राइट द फुल फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट. न्यूट्रिएंट्स में भी फैट्स, एफ फॉर फैट्स. न्यूट्रिएंट्स में भी प्रोटीन्स, पी फॉर प्रोटीन्स. में भी मिनरल्स, में भी विटामिन्स. ठीक है, मैं यहाँ सब शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर. ठीक है. अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. The utilization of these nutrients by the organism. Now what are the nutrients? अबे nutrients क्या होते हैं? तो these are the substances which an organism obtained from the surrounding and uses it as a source of energy for the biosynthesis of body constituents like tissues or organs. ठीक है, तो nutrients क्या होते हैं? Nutrients are the substances which an organism absorbs from the atmosphere, right? Which an organism obtained from the organism. So let's write down the definition of nutrients. What is nutrients? What are nutrients? So nutrients are the substances which an organism obtains from the
surrounding medium obtained from the surrounding and uses it as a source of energy, uses it as source of energy or for the biosynthesis of body constituents, various body constituents, right? Various body constituents. Body constituents में क्या होते हैं? Tissues, organs, है ना? तो to form the various body constituents to provide energy for performing various metabolic activities or to provide energy for various metabolic activities. अब ये डेफिनेशन बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना? आप सोचेंगे इसको कैसे हम याद करेंगे, इतना बड़ा डेफिनेशन 4 लाइनों का, राइट? तो आप एक एक लाइन को समझते हैं पहले. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि ऑर्गेनिज्म जो है बाहर अपने सराउंडिंग मतलब अपने बाहर से ऑब्टेन करता है. बाहर से किस फॉर्म में ऑब्टेन करेगा? फूड के फॉर्म में ऑब्टेन करेगा, ठीक है? फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑब्टेन कर रहा है. अब किस लिए ऑब्टेन कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं. क्या क्या करता है? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इट इज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को किस तरीके से ले रहा है? या तो सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ले रहा है टू गेट द एनर्जी, या फिर हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में टिश्यू ऑर्गन में कहीं पे क्या होता है, हमारी बॉडी तो बन जाती है लेकिन क्या होता है कुछ प्रोसेस डैमेजेस वगैरह होते रहते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग होनी होती है. तो वो कहाँ से होगी? ये सब न्यूट्रिएंट से ही होगा. तो न्यूट्रिएंट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिज्म लेता है, या फिर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू या ऑर्गन की बायोसिंथेसिस करने के लिए, और द फॉर्मेशन बायोसिंथेसिस मतलब उनके फॉर्मेशन के लिए लेता है, ठीक है? और दूसरा और क्या करता है, जो हमारे सेल में, हमारे शरीर में हर एक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है? हमारा एक सेल बॉडी का जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है. तो उसके लिए क्या होता है? एनर्जी की चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है. एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमें? न्यूट्रिएंट से मिलेगा, राइट? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट और टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है? नाउ ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इज मेनली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? न्यूट्रिशन जो है मेनली ये 2 तरीके का होता है. लेट्स सी न्यूट्रिशन. दिस प्रोसेस इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition, ठीक है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड. ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फूड. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन जिन भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन फूड. Autotrophic nutrition means organisms are capable of forming their own food. Nutrition के basis पे organism 2 तरीके के होंगे, autotrophic nutrition organism and heterotrophic organism. तो autotrophic organisms क्या होते हैं? They are capable of forming their own food. इसमें क्या होता है? जनरली ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे?
they take the inorganic substances from the atmosphere, means they take the carbon dioxide, they take water from the atmosphere, and then with the help of sunlight and chlorophyll they synthesize organic substances, organic molecules, that is the carbohydrate. and carbohydrate ही जो है main material है जो कि हम main substance है which we utilize, right? So which is synthesized by the autotrophic organisms, right? तो इसमें autotrophic organisms क्या करते हैं? They takes the inorganic substances from the atmosphere, carbon dioxide and water, and in the presence of sunlight, SL for sunlight, and chlorophyll, CHL stands for chlorophyll, they prepare organic food, that is carbohydrate, right? और इस प्रोसेस में क्या होता है, दे ऑल्सो रिलीजेज ऑक्सीजन भी निकालते हैं, है ना? तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? हर ऐसा ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा जहाँ पे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होना नामुमकिन है, नहीं होगा, ठीक है? तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? Chlorophyll is present in all the green plants. Some lower bacteria, some cyanobacteria are also there. Some bacteria are also there where the pigments are present, chlorophylls are present. So let's see the example where the chlorophylls are present and where you can see the autotrophic nutrition. It is found in all the plants, green plants. You can say plants, rather you write plants, क्योंकि सारे plants में photosynthesis होती है. Plants, few bacteria are there where autotrophic mode of nutrition is present. Heterotrophic mode of nutrition क्या होता है? Hetero means other or different, trophic means food. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन फूड, दे आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन फूड, सो दे टेक्स देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, राइट? सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट capable of forming their food. अब क्या सोचते हैं? What about us human beings? Are we capable of forming our food? I'm not talking about cooking चावल and दाल, making rotis. रोटी बनाना, चावल दाल बनाना, this is not a food formation. ये रोटी चावल दाल आया कहाँ से? इसको हमने ग्रो किया, मतलब हमने अपनी बॉडी से बनाया है क्या? नहीं. वी आर गेटिंग ऑल दीज फ्रॉम द प्लांट्स. सो हाउ कैन वी से दैट वी आर ऑटोट्रॉफिक और वी आर मेकिंग फूड? नो, वी आर एक्चुअली नॉट द एक्चुअल सोर्स ऑफ दीज फूड्स. वी आर कुकिंग दोज फूड्स, वी आर कुकिंग दोज मटीरियल्स which we get from the plants. So we are human beings are the autotrophic organisms. So let's write down the example of heterotrophic organism. All animals में हम भी आ गए. Human beings are the animals, you know ना? Humans are also the animals. The most intelligent in human, the most conscious, self-conscious animal is the human. All animals, fungi, so these all are the example of bacteria. Mostly bacteria are heterotrophic, ठीक है? Mostly bacteria क्या होते हैं? Heterotrophic होते हैं. Only few bacteria are autotrophic. Now this autotrophic mode of nutrition, it is again of two type. ये जो autotrophic mode of nutrition है,
ये फिर दो तरीके का होता है, इट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and chemoautotropic nutrition. ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक दोनों ऑटोट्रॉपिक टाइप है. तो इसमें डिफरेंस क्या है, नाम से समझ में आ रहा है. फोटो मीन्स लाइट, तो इस तरीके के न्यूट्रिशन में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, राइट. कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, दे रिक्वायर केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, राइट. सो राइट डाउन, रिक्वायर लाइट एनर्जी for food synthesis, right. And chemoautotropic क्या होते हैं, they require chemical energy for food synthesis. लाइट एनर्जी फोटो ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं. एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, और यू कैन राइट ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, सो दीज आर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो फोटोट्रॉपिक. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये जो है यू बैक्टीरिया. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया. ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इट इज अ टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया. कीमो ऑटोट्रॉपिक में आप एग्जांपल लिखो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया. हायर क्लासेस में हम इसको डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. नाउ जो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि आपने ये नाम लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे बैक्टीरियाज के, है ना. एग्जाम्पल लिख लिए. अब हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे. इसमें मैंने बताया कि दिस cannot synthesize their own food, they depends on the other organisms for the synthesis of food. तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को कई टाइप में डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग बेसिस पे. अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फूड देयर आर 7 टाइप्स हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड. ठीक है, ध्यान देना आप, हम किस टाइप पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड. वी आर क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड. ध्यान देना, तो दे आर ऑफ 7 टाइप्स. 7 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आर हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, विच फीड्स ऑन द प्लांट्स. हर्बीवोर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स अपॉन द प्लांट्स, फीड्स अपॉन प्लांट्स. तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लांट्स को कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, काऊ, गोट. काऊ हो गई, गोट हो गया, दे आर द हर्बीवोर्स. नेक्स्ट कार्निवोर्स. नेक्स्ट आर
carnivores. Carnivores are the organisms which feed upon the flesh of animals. Feed upon flesh of animals. एग्जाम्पल लायन है, टाइगर है ना, लेपर्ड है, लायन, टाइगर, leopard, panther, jackals, they all are carnivores. Then omnivores. Third type is omnivores. Omnivores are those organisms which feed upon both plants and the flesh of animals. Feed upon plants and flesh of animals. ठीक है, इसका एग्जाम्पल में एक तो हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग है, कैट है. सो एग्जाम्पल लिखो, ह्यूमंस. Humans are carnivores. Humans, dogs, right? Humans and dogs. Next is detritivores. Detritivores are detritivorous organisms are those organisms which feeds upon detritus or the dead organism. They feed upon detritus or dead organism. Example, detritivore का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, अर्थवर्म. अर्थवर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है बच्चों? Belongs to the phylum Annelida. Detritivores. After detritivores, the next is sanguivores. Sanguivorous animals are those animals which feed on the blood of the animal. ठीक है, for example leech है, they feed on blood. ये blood पे feed करते हैं. Example, leech, female mosquito. ठीक है, leech and female mosquito. Next is frugivorous. Frugivorous organisms are those organisms which feed upon fruits. बहुत सारे हैं, आपको पता होगा कौन कौन से हो सकते हैं. पैरट है, मंकी है. एग्जाम्पल, पैरट, monkey, right? And the last is insectivores. Insectivorous plants. Insectivorous plants are the insectivorous animals are the animals which feed upon the insects, right? Upon insects. Example, बैट्स हो गए, lizards हैं, and spiny ant eater, spiny ant eater. So these are the types of the heterotrophic organism on the basis of the nature of food. Just I have discussed heterotrophic mode of nutrition in 7 categories depending on the nature of food. Now heterotrophic mode of nutrition are again of 4 types on the basis of the mode of feeding. ठीक है, तो mode of feeding के basis पे
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 2 तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है, सॉरी। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ mode of feeding, they are of 4 types. They are of 4 types. Let's see all those 4 types. Right? First is holozoic nutrition. Right? Second is septotrophic. Third is parasitic mode of nutrition. And the fourth one is symbiotic. Symbiotic mode of nutrition. ठीक है, तो first I will deal with the holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition is, what does it mean? It means the feeding on solid food. Holozoic nutrition में क्या होता है? The organism, it ingests the solid food, right? So what is the meaning of holozoic nutrition? Feeding, इसकी meaning क्या होती है? What is the holozoic means? Feeding on सॉलिड फूड। मैंने बताया इसमें क्या होगा, सॉलिड फूड इज इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स is taken up by the organism and it is broken down into the simpler substances, ठीक है। इसमें क्या होगा, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substances are ingested by the organism and it is then broken down into simpler substances. Simpler substances कैसे होंगे? Such simpler substances which are absorbed in the cell and then utilized by the cell to perform its metabolic activity, right? Simpler substances इस फॉर्म में होंगे कि उस फॉर्म में जो है सेल उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी और देन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो ब्रेकेज होता है, ये ब्रोकन डाउन होता है लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में। दिस इज परफॉर्म बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इट विल ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन दीज सिंपलर सब्सटेंसेस दे आर absorbed by the cells and then cell will utilize them to perform various metabolic functions, ठीक है। अब जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो भी फूड जिसका डाइजेशन हुआ, सारा जो है वो फूड इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, सम रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड। तो अगर वो अनडाइजेस्टेड हैं और अनअब्जॉर्ब्ड हैं तो क्या करेंगे, अगर वो बॉडी में पड़े रहेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द बॉडी, इट विल कॉज हार्म टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इट हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, इट हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, इट हैज टू बी थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो क्या होगा, जो अनएब्जॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड और एंड अनअब्जॉर्ब्ड
फूड या सब्सटेंसेस पड़े हैं, सब्सटेंसेस आर थ्रो आउट ऑफ द बॉडी, आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी by the process egestion, ठीक है। इजेशन की प्रोसेस से ये जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं इनको बॉडी के बाहर थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो एग्जाम्पल, लेट अस सी वेयर इज दिस होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड। इट इज फाउंड इन amoeba and humans, ठीक है। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो मनी क्या होता है? सेप्रो मीन्स होता है रॉटन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रो? सेप्रो की मतलब होता है रॉटन। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है। ये क्या करेंगे? They will secrete some extracellular enzymes on those material, whatever the food substances would be there. उस पे सपोज ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इट विल pour this extracellular enzymes upon this डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम करेगा क्या? दिस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम विल कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द सिंपलर अब्सॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करेगा? इसके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये सिंपल फॉर्म, इसके बाद दिस सिंपल एब्जॉर्बेबल और सॉल्युबल फॉर्म विल बी अब्सॉर्ब बाय द सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई मेनली एंड बैक्टीरिया. They are also known as decomposers. The organisms where seprotrophic mode of nutrition is found, they are known as decomposers. Next is parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition में जो ये parasites होते हैं, they live on or inside the other organism, ठीक है? They live on or inside the other organism known as host. जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या उसके अंदर ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा? जो गेस्ट होंगे, गेस्ट कौन होंगे? पैरासाइट्स होंगे, है ना. गेस्ट कौन होंगे? पैरासाइट्स होंगे. तो दे आर तो बेनिफिटेड, गेस्ट्स आर बेनिफिटेड. लेकिन जो होस्ट होंगे, होस्ट क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं. दे गेट हार्म्ड, ठीक है. इनको नुकसान पहुंचेगा बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इट विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है. ठीक है. तो दिस मोड ऑफ फीडिंग, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो इनकी मोड ऑफ फीडिंग है, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है. तो ये जो इनकी मोड ऑफ फीडिंग होती है, मोड ऑफ फीडिंग ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन हैबिटेट
and modification of parasite. ठीक है, let's see few examples of the parasitic nutrition. Example आपका हो गया Plasmodium, tapeworm, Plasmodium है, tapeworm है. In case of plants, there is a plant which is known as Cuscuta. It is the example of flowering plant. ठीक है, तो ये जब Cuscuta होता है, इसमें क्या होता है, it lacks, Cuscuta क्या होगा, it will lack chlorophyll as well as leaves. Chlorophyll भी इसमें नहीं होता और leaves भी नहीं होती. तो what they do, it Cuscuta, what does it do? It sends out it Haustorium. Haustorium, also known as sucking root, inside the body of the plant. ठीक है, कहाँ तक उसको अंदर भेजेगा, till the phloem. It sends out its Haustorium or sucking root to the phloem of the plant. फ्लोएम में क्यों भेजता है, फ्लोएम तक क्यों ये सकिंग रूट को सेंड करेगा, क्योंकि फ्लोएम इज द टिश्यू विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड. ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड. तो ये फ्लोएम तक इसको ऑस्ट्रेरियम को भेजेगा एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. ठीक है, सो दिस इज द पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. लास्ट इज सिम्बियोटिक. सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म. इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं एंड द बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड. हियर बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड. ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के साथ दे विल रिमेन इन म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. इन केस ऑफ ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, ये कोलाई, ई कोलाई और ह्यूमंस का एसोसिएशन, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ ई कोलाई ह्यूमंस ऑल्सो नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. सो इसमें क्या होगा, ई कोलाई विल प्रोड्यूस विटामिन बी इन द इंटेस्टाइन. ई कोलाई क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस विटामिन B12. ठीक है, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में विटामिन B12 प्रोवाइड करता है ई कोलाई. उसके बदले में क्या होगा, ह्यूमंस इसको क्या प्रोवाइड करेगा, तो दिस B12 इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन. ठीक है, दिस B12 इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमंस. In turn, what are the things which are E. coli which the E. coli are getting from the humans? So E. coli is getting simpler food from, ठीक है, E. coli is getting simpler food from the humans. E. coli जो है ह्यूमन से क्या कर रहा है, फूड ले रहा है फ्रॉम द ह्यूमन इंटेस्टाइन. ठीक है, फ्रॉम, क्यों इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टमक में जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डाइजेशन कहाँ होता है. ह्यूमंस का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही हम कुछ खाएंगे सलाइवा में वो रैप होगा तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है,
तो इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचते पहुंचते जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड मटेरियल, और वहां पे इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। तो वहां पे सिंपलर फूड मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे विच विल बी एब्जॉर्ब बाय द ई कोलाई। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द heterotrophic nutrition based upon the mode of feeding. Now the nutrition in animals on the basis of the occurrence, it can be divided into 2 categories: nutrition in plant and nutrition in animals. So in the next lecture I will be dealing with the nutrition in plants. Thank you.